So, hello, my dear students, once again with Learning with Ganesh. So, we'll continue the same what we have done in the earlier two previous videos, that we have done chemistry of standard 10 CBSE syllabus, chapter 1, chemical reactions and equations. So far in two videos we have learned so many things, and in the previous video we have just learned types of chemical reactions. Now we will proceed what are there according to the syllabus class 10. Now here in this section we are going to read oxidation and reductions. And one more, redox. Another one what we are going to read is that we will just discuss corrosion and rancidity. And third, how to balance the chemical equations. Just there are so many tricks are there to balance the chemical equations. So we will see any one trick, any one method in which it will be convenient for us how to balance the equation very easily. How to balance the, balancing chemical equations. Okay. So one by one we will discuss. So first we will see oxidation and reduction. Oxidation and reduction. So first we will discuss about oxidation. What actually oxidation is? A reaction in which there is an addition of oxygen, then it is oxidation reaction. If any substance, oxygen is added to that substance, that means this reaction is oxidation reaction. Or else, if any substance, hydrogen atom loses, loss of hydrogen, then also it is oxidation reaction. Now let us take some examples so that we can understand what actually oxidation is, because examples makes the perfect. Now Cu, if you heat copper, heat means naturally what gas is there? Oxygen. So we are adding oxygen. What happens? We will get copper oxide. So for balancing, because here oxygen is 2, here is 2, we will write 2 here, so also we will write 2. This is solid, this is gas. Now, what happened? Here copper, what happened? After reaction, after burning copper, we got copper oxide, means oxygen is added to copper. So such reactions in which oxygen is added, gain of oxygen occurred, then that type of reaction is called oxidation reaction. Is it clear? Let us take one more example, zinc. That also if you heat, you will get zinc oxide. Here 2, here 2. Here also see zinc is a metal. What happened? Here after complete reactions, the product got oxygen was added, zinc oxide. So such reactions in which oxygen is added to any element, then that type of reactions are called oxidation reaction. Not only gain of oxygen, but loss of hydrogen is also oxidation reaction. For example, we'll take one example, hydrogen sulfide, H2, hydrogen sulfide plus chlorine. What we will get? We will get hydrochloric acid plus sulfur. Now here see, in sulfide hydrogen is there. Hydrogen is there. But once when it is reacted with chlorine, what happened? Hydrogen is removed. This sulfur, hydrogen is removed, means
loss of hydrogen. So such type of equations or reactions are also called oxidation reaction. Means oxidation reactions means in which addition of oxygen, subtraction of hydrogen. Is it clear? Now this is oxidation. Just opposite is reduction. Reduction means what? ऑक्सीडेशन में क्या हुआ? ऑक्सीजन का फायदा हुआ और घाटा हुआ हाइड्रोजन का. बट यहां जस्ट उल्टा होगा. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सबट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन. एनी वन, कोई, या हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाए तब भी वो रिडक्शन रिएक्शन है, या ऑक्सीजन उसमें से निकल जाए तब भी वो रिडक्शन रिएक्शन है. जस्ट हम उसको एग्जांपल्स में देखते हैं. कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ मिक्सअप करते हैं तब क्या होता है? हमको H2O मिलके कॉपर अलग हो जाता है. नो व्हाट हैपेंड हियर? कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकल गया, खाली कॉपर रह गया. ऑक्सीजन निकल गया. इज इट क्लियर? ऑक्सीजन निकल गया. तो ये भी हमारा रिडक्शन है. देखते हैं वन मोर एग्जांपल देखते हैं. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलाते हैं तो हमको मिलता है HCl. ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, इसको भी 2 कर देते हैं. तब यहाँ पर क्या हुआ? क्लोरीन, ये क्लोरीन था, यही क्लोरीन यहाँ था, इस क्लोरीन को हाइड्रोजन ऐड हो गया. इज इट क्लियर? हाइड्रोजन ऐड हो गया. सो a reaction in which there is a gain of hydrogen is called oxide reduction, or else if it is a loss of oxygen then also it is reduction. So I think you are much acquainted with these two, what are oxidation reactions and what are reduction reactions. Now there is one more reactions that is called redox reactions. REDOX. What are redox reactions? क्या है redox reactions? ऑक्सीडेशन में हमने देखा ऑक्सीजन का प्लस हुआ, रिडक्शन में देखे हाइड्रोजन का प्लस हुआ, इसमें हाइड्रोजन का माइनस हुआ, इसमें हाइड्रोजन का माइनस हुआ, इसमें ऑक्सीजन का माइनस हुआ. अब रिडॉक्स में क्या हुआ? मिक्स, दोनों मिक्स हो जाते हैं. वो ऐसे इक्वेशन जिसमें हम ऑक्सीडेशन को भी देखें, रिडक्शन को भी देखें, उन दोनों को कंबाइंड एक तीसरा इक्वेशन होता है, दैट इज रेडॉक्स. देखिए इसमें रिडक्शन का मतलब RED, रेड का मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन. दोनों को थोड़ा थोड़ा वर्ड लेके एक नया वर्ड बना दिया, रेडॉक्स रिएक्शन. तो रेडॉक्स रिएक्शन जब भी आएगा, यू जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स जस्ट मिक्सिंग ऑफ oxidation and reduction. Let us take one example. हाइड्रोजन सल्फाइड को हम क्या करते हैं? क्लोरीन के साथ ऐड करते हैं तब हमको मिलता क्या है? HCl+S मिलता है. ठीक है. अब यहाँ हुआ क्या? अब यहाँ पे जो सल्फाइड था वो सल्फर अलग हो गया, तब हमको यहाँ पे क्या हो गया? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया. लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? रिडक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन. दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारा ऑक्सीडेशन में आ गया. अब क्या हुआ? क्लोरीन, यहां जो क्लोरीन था ऐड हो गया, दैट मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन. गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन हो गया. तो हमको लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हुआ, दोनों एक ही इक्वेशन मिला. सो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस और रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. कॉपर ऑक्साइड CuO को हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ देते हैं तो हमको मिलता क्या है? वाटर, H2O प्लस मिल गया क्या? रह गया क्या? Cu रह गया. देखिए सिंपल, आप अपने से देखिए. यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्साइड था, यहाँ पर ऑक्साइड हट गया, दैट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया. क्या हुआ? यहाँ पे लॉस हो गया. किसका? O2 का लॉस हो गया. O2 का लॉस का मतलब क्या होता है? रिडक्शन. रिडक्शन रिएक्शन हमको देखा, यहाँ पर हाइड्रोजन
था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। सो देखिए यहाँ पर हमको दोनों दिख गए हैं, दोनों दिख गए हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी एंड रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन भी एंड रिडक्शन भी। सो दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस इन विच वी सी बोथ the character of oxidation also and the character of reduction also in a single equation, then that type of equations are called redox reactions. So don't get confused, you just make it practice, you rewind it, you revise it, it will be more clear. You see many more examples are there in your book, you just take out the book, take out the equations and practice it, what type of equations they are, what type of reactions they are, whether they are oxidations or reductions or they are redox. So these are what oxidations and reductions I want to explain you. Now come to the another part of this one, corrosion. What are corrosions? कोरोजन क्या होता है? दो चीजें हैं आपके बुक में, आपके सीबीएसई 10th क्लास के इसमें लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है। एक है कोरोजन, एक है रैंसिडिटी। देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर रैंसिडिटी, देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। कोरोजन का मतलब, दोनों का मतलब होता है समथिंग पुअर क्वालिटी हो जाना। जैसे इफ यू एक्सपोज द आयरन, व्हाट हैपेंस, इट विल गेट रस्ट। नॉट ओनली आयरन्स, मेनी मेटल्स आर देयर। आप ऐसे आपका जैसे सिल्वर, what happened, the silver slowly it will convert into grey color, खराब होता है। और कॉपर में भी ग्रीनिश टाइप का कुछ आ जाता है। सो जो मेटल्स अगर खराब होते हैं, मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, उसको कहते हैं कोरोजन। और रैंसिडिटी, ये देखिए मेटल्स के साथ है, रैंसिडिटी होता है फैट्स और ऑयल्स के साथ। कभी कभी देखिए हमारे घर में जब तेल का टीना आता है, वेजिटेबल ऑयल, जब टीना ख़त्म हो जाता है या तेल वहाँ पे थोड़ा बहुत रह जाता है, उसको हम कई दिन से यूज़ नहीं करते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कैसा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी। फैट्स भी देखिए वैसा ही हो जाता है, यानी दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, सो दैट इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी एंड कोरोजन। सो आई थिंक इट विल क्लियर फॉर यू। Now the main important thing, how to balance the chemical equations, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आना ही है। आपको इक्वेशंस दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि बैलेंस द इक्वेशंस। तो हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन करने के लिए आपके सीबीएसई सिलेबस का जो क्लास 10 का बुक है, एक्सरसाइज जो पार्ट है, उसी में से हम लोग दो इक्वेशंस निकाल के देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस क्या था हमारा? नंबर 1 था HNO3 नाइट्रिक एसिड को प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2, फिर इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट NO3(2) प्लस H2O. Now, if the equation is not balanced, तो such equations are called skeleton equation. Skeleton equations का मतलब वो जो मतलब बैलेंस नहीं हुआ। नाउ वी हैव टू मेक इट बैलेंस। सो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं दो पार्ट में, क्योंकि एरो है, दिस इज वन साइड एंड दैट इज अनदर साइड। सो दिस साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट साइड एंड दैट साइड इज कॉल्ड रिजल्टेंट साइड। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सब्सटेंसेस है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग लास्ट में लिखते हैं, पहले क्या क्या देखते हैं। यहाँ पर हमको इस साइड में एक एन मिला, ये रफ वर्क है, एन है यहाँ पर, और क्या मिला, Ca भी है। फिर इसके बाद हम लास्ट में ऑक्सीजन देखेंगे, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। तो इस तरफ क्या क्या एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। उस तरफ भी वही है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब हम यहाँ पे दो पार्ट मान लेते हैं, एक LHS और एक RHS। LHS में नाइट्रोजन कितने हैं, N कितने हैं, 1। इस पार्ट में एरो की इधर वाले को LHS कहते हैं, कितने हैं, 1।
सो वी गॉट 1. RHS में कितने हैं? ये whole 2, that means this 2 is for O also, this 2 is for N also. So we got 2 here. Now CA, here in this side CA we have only 1, so there also 1. O यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, that means 3 plus 2 मिला करके यहाँ 5 हो जाते हैं. उस तरफ कितने हैं? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा. 3 2s are 6 plus 1, there are 7 atoms of oxygen. Now hydrogen, here is 1, here is 2, so in all hydrogen 3 है. वहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है. देखो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे N इस साइड 1 है, वहाँ 2 है. कैल्शियम ठीक है, ऑक्सीजन देखिए 5 है, 7 है, हाइड्रोजन देखिए 3 है, 2 है. इट इज़ नॉट बैलेंस इक्वेशन. नाउ बिफोर आई गो फॉर बैलेंसिंग, नाउ द क्वेश्चन आई एम आस्किंग, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए? बिकॉज लास्ट 9th क्लास में, इन द प्रीवियस क्लास में वी हैव लर्न दैट during chemical reactions there should be no disturbance with mass. इसका जो मास है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड. ना मास को क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया. इट इज कंजर्व, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो मास हमेशा कुछ नहीं होता. तब मास यहाँ पे देखिए अलग अलग. तब हम क्या करेंगे? हम यहाँ घटा नहीं सकते. केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने वक्त हम उसको बढ़ाते ही है, बढ़ाना ही है, हमको घटाना. कैसे बढ़ाए? यहाँ 2 है तो तब हम इसको यहाँ बढ़ाएंगे. ऐसा नहीं कि इसको हम इधर घटाएंगे. इफ इट इज 2 वी हैव टू इंक्रीज हियर 2. सो लेट अस टेक, वी विल राइट 2 हियर. ओके, सो व्हाट हैपन? फिर अगेन हम लोग चेक कर लेते हैं. हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे 2 + 2, हाइड्रोजन 4 हो गया. इजंट इट? वहाँ कितना हो गया? हाइड्रोजन वहाँ 2 था. अब हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को वहाँ भी 2 कर देते हैं. मान लेते हैं यहाँ पे हम 2 कर दिए तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गया. ओके, नाउ अब CA, N देखिए यहाँ पे भी 2, दे आर ऑल्सो 2, सो N was balanced. Okay, CA is 1, CA here is also 1, CA is also balanced. Now oxygen, what happened? 2 3s are 6. ऑक्सीजन 2 and 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3s are 6 and here 2. So that means in all 8 oxygen atoms are there. 8 oxygen. And there what we will see? Here 3 2s are 6 and this 2 8. So this is also balanced. Now see, the law of conservation of mass हमारा बराबर हो गया यहाँ और यहाँ. So that means now this is a balanced equation. Is it clear? So shall we go one more exercise, one more equation of this, of your book only, of exercise 6 का, Roman number 6 exercise part का हम लोग एक और देखते हैं. इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा एंड कॉपी इट कर जस्ट एक बार समझ लो एंड ट्राई टू जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू डू विथ योर सेल्फ ओनली, विथ योर ओन. नाउ वन मोर एग्जांपल विल टेक, विल गो फॉर लास्ट वन. बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives BaSO4, barium sulfate, plus HCl. Now what type of chemical reaction is this? You see, Cl change हो गया, इसके साथ आया, ये इसके साथ आया. That means double displacement का एग्जाम्पल है. Now we will see. पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स एरो के इधर है उधर है. बेरियम Ba एक, Cl, हाइड्रोजन बाद में देखते हैं, सल्फर बाद में, लास्ट में हम गैस को देखते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. गैस वाले को लास्ट में देखते हैं. वहाँ पर भी देखिए बेरियम है, क्लोरीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है. नाउ हम क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमने रफली लिख लिए हैं. अब हम ना व्हाट विल सी कितने हैं. Ba यहाँ पे कितने हैं? 1 है. दैट साइड ऑल्सो 1. इज इट क्लियर? Cl यहाँ कितने हैं? 2. वहाँ पे Cl कितना है? ओनली 1. यहाँ पे S कितने हैं?
1. There S also 1. Here O, 4. Is there an O? No. 4. There 4. There also 4. H यहाँ पे 2. That side H is 1. So this is skeleton equation because it is the mass is not equally distributed. Now here A 1 1, it is balanced. Chlorine 2 and 1. So here we have to balance. मैंने कहा इसमें घटेगा नहीं, बढ़ेगा तो किस साइड? उस साइड बढ़ेगा. हमको 2 लाना है तो यहाँ पे Cl 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 क्या यहाँ भाई, तो हम इसको 2 कर दिए. So we got 2. Is that clear? अब यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन पहले 1 था, हाइड्रोजन अब यहाँ 2 हो गया. Is that clear? I think everything is balanced. This also 1 1 2 2 1 1 4 4 2 2. How easy? If you practice it, it will become more easy, isn't it? So that's all in this chapter. You please revise it, follow it. Everything will be easy. In all, the question is the problem of understanding. If you understood it very clearly, I think whole chapter will be easy for you. अब चुटकी में सब कुछ कर लेंगे, समझने की बात है. अगर आप लोगों को समझ में आने लगती है तो सब्जेक्ट हमको अच्छा लगने लगता है. अगर सब्जेक्ट हमको अच्छा लगने लगता है तो पढ़ाई में भी मन लगता है, और तब उस वक्त हम बैठते हैं तो हमारे पास एक एम होता है कि चलो इस चीज़ को हम समझें, इसको बना लेते हैं. अगर हम नहीं समझते हैं तो पढ़ने तो बैठ जाते हैं, क्या पढ़ें पता नहीं चलता. सो इफ़ यू हैव anything what we have to read, so if we know the topic, automatically you make the practice, because practice makes you more perfect. Is it clear? So that's all. Our first chapter, chemical reactions and equations, is completed. So you revise it. So we will meet you with another topic, another video. Till then, goodbye.